ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ସୁଶୀଲ ସେठ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଜରାମ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସକୁ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ସମୟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ତ ସେହି ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଆମେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିଦିଅ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏହା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା। ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 36ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 650 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସୀୟ ବୋମା, ତା ସହିତ ଆଉ ବି ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ 1914ରୁ 1918 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା, ତାହା ଠିକ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1939 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ 1939 ମସିହା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ 1914ରୁ ଯେଉଁ 18 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଦୂର କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆସନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସୁଦୂର କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ, ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏହିଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆସନ୍ନ ଆକସ୍ମିକ ଇମିଡିଏଟ୍ କଜ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେଇଟା ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି। ତ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଥା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ଜର୍ମାନୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ। ତ ସେହି ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବିସ୍ମାର୍କ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ 1871 ମସିହାରୁ 1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ପୃଥିବୀରେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାର? ଏବଂ କାହିଁକି ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ୟୁରୋପରେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କାହିଁକି ଏକ ଘରିକିଆ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ତ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ 1870 ମସିହାରୁ। ତ ସେଇ 1870 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସିଦାନ ଯୁଦ୍ଧ। କି ଯୁଦ୍ଧ? ସିଦାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ହାରିଗଲା ଏବଂ ହାରିଗଲା ପରେ 1870 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? 1871 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ରୁଷିଆର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ
प्रथम विलियम तांकु जर्मनी सम्राट रूपे घोषणा कर दिया गला। आम जानिचु युद्ध रे जे हारी जाए सब शर्त मानिबा को से बाध्य होइଥାଏ। ठीक सही परे फ्रांस मध्य जर्मनी शर्त मानिबा को बाध्य होला एवं 1871 मसीहा मे मास 10 तारिख रे कोन होला फ्रांस एवं जर्मनी मध्य गोटे चुक्ति साक्षरत होइतिला एवं सही चुक्ति को हम कहबा कोन से चुक्ति को हम कहबा फ्रैंकफर्ट संधि बा फ्रैंकफर्ट चुक्ति। यह क्यों मसीहा होइतिला 1871 मसीहा मे मास 10 तारिख रे। तो यही संधि अनुसार कोन होला फ्रांस तार दुईटी जो अंचल थिला बा प्रदेश थिला अल्सेस एवं लोरेन जर्मनी को यह हस्तांतर करने को से बाध्य होइतिला। तापर परे जो फ्रांस होइतिला विभिन्न प्रकार जो अंचल अल्सेस एवं लोरेन अंचल ताहाकू पाइबा पई सबुले से चाहिला एवं युद्ध रे जो हारि जाइतिला जर्मनी फ्रांस सही पराजयर से प्रतिशोध नेवा पई सबुले सुजोग को अपेक्षा करि रहिला एवं जर्मनी ऊपर केमिति से प्रतिशोध नेबो आगो विभिन्न प्रकार कार्य से लिप्त रहिला। तेणु करी भविष्य रे जेमिति फ्रांस जर्मनी को आउ विभिन्न प्रकार युद्ध न करू किंबा अन्य कोनोसी असुविधा सृष्टि न करू बोली फ्रांस को यूरोप रे एक घरिया करिबा पई प्रथम करी बिस्मार्क एही चुक्ति व्यवस्था आरंभ करितिले। तेणु प्रथमे कोन हला जर्मनी रो जो बिस्मार्क थिले से त्रिसम्राट संघ गठन करथिले एवं ए त्रिसम्राट संघ काहा मध्य गठन हितिला जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं रूसिया रो सम्राट मानन को नेकी गठन हितिला। तुम देखि परुथबो गोटे फोटो चित्र अछि सही देश गुडी को एटा तीनोटी सम्राट तांको त्रिसम्राट संघ बोली कहा जाउतिला। तापरे एही जो तीनोटी सम्राट थिले तीनोटी जो देश थिले सेही देश मध्यरु रूसिया मध्य गोटे थिला एवं रूसिया भी बहुत माने असंतुष्ट होइला ऑस्ट्रिया ऊपर। काहे कि असंतुष्ट होला जे असंतुष्ट होबार कारण एथि जे जो ऑस्ट्रिया थिला ऑस्ट्रिया बल्कान अंचल रे प्रवेश करिकि कोन करतिला जे तार विभिन्न तार निज स्वार्थ हासिल पई से विभिन्न पर्याय काम करूदिला। तो एही जो घटना थिला रूसिया पसंद करू नथिला जे बल्कान अंचल को ऑस्ट्रिया जाई कि हस्तक्षेप करू सेठारे से विभिन्न प्रकार तार जो स्वार्थ जो हासिल करछि सेटा करू बोली। तेनु 1878 मसीहा रे बर्लिन महासभा बर्लिन होची जर्मनी रो राजधानी बर्लिन। तो से जर्मनी राजधानी बर्लिन रे कोन हला बर्लिन महासभा हेतिला। से महासभा रे ऑस्ट्रिया जो बल्कान अंचल रे प्रवेश करथिला सेही जिनिस को कोन कले बिस्मार्क समर्थन घोषणा कर दिले। तेनु करी रूसिया ऑस्ट्रिया ऊपर एवं जर्मनी ऊपर से असंतुष्ट हला एवं एहा परे एभली एक परिस्थिति सृष्टि हला रूसिया एवं ऑस्ट्रिया से माने परस्पर ठारू विचिन्न हबा भली परिस्थिति सृष्टि हे गला। तापर देखिबा हमें बल्कान अंचल माने कोन बुझिबा हमें देखंतु बल्कान अंचल माने अल्बानिया बुल्गारिया ग्रीस रोमानिया सर्बिया मॉन्टेनेग्रो बोस्निया हर्जेगोविना यूरोपीय तुर्की को धारण करितिबा दक्षिण पूर्व यूरोप रो उपद्वीप को कोन कहबा हमें बल्कान अंचल बोली कहबा। माने चित्र रे तुम देखि परतो पिला माने। तापर ऑस्ट्रिया एवं रूसिया मध्य तो तिक्तता सृष्टि हे गला। यह सबु सत्य मध्य बिस्मार्क कोन कले 1879 मसीहा से कोन कले ऑस्ट्रिया सहित एक राजीनामा करदिले एवं 1882 मसीहा रे एही ऑस्ट्रिया राजीनामा रे कोन हला इटाली जोग देला। तेनु से जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं इटाली को डेकी कोन हला त्रिशक्ति मेंटो बोले गोटे आ गोटे मेंटो गठन हे गला। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया इटाली मिसी त्रिशक्ति मेंटो गठन करिदेले। एही मेंटो कोन थिला गोटे प्रतिरक्षात्मक मेंटो थिला। अर्थात कोन जदि इटाली ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी भितरु अन्य कोनसी देश जदि आक्रमण करिवे ताहले से माने कोन करिवे ताहले से माने मिसी की तारो प्रतिरोध करिवे समस्त निज निज को से माने सुरक्षा देबे बोली कोहा गला। चुक्ति रे एटा लिखा जाइतिला। तापरे 1819 मसीहा रे कोन हला बिस्मार्क को पतन हे गला। जर्मनी से चांसलर भावे से इस्तीफा दिले एवं जर्मनी रो क्षमता से ओहरी गले। तापर रूसिया एवं फ्रांस परस्पर निकट रहबा लागिले काहे कि ना एपटे ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी ऊपर रूसिया तार संपर्क तिक्त होगा लगिला। तेणु 1894 मसीहा रे कोन हला से माने दुहे गोटे प्रतिरक्षात्मक चुक्तिर शर्त सहित गोटे चुक्ति मध्य स्वाक्षर कले। तो एही परि भाबरे कोन हला
यूरोप रे त्रिशक्ति मेंट एवं द्विशक्ति मेंट भाव में दुईटी गोष्ठीर उत्थान है, जहाद्वारा कौन है यूरोप रे विभिन्न प्रकार जो राजनीतिक कलह आ विभिन्न प्रकार समस्या लगी रही से सब समस्या गुड़िक धीरे धीरे बढ़ा लगिला। द्वितीय विलियम जी थे जर्मनी जी काइजर थे, मन रख जर्मनी सम्राट को काइजर बोली कहा जाए। तो काइजर द्वितीय विलियम जी थे तांकर आधिपत्य विस्तार करने विभिन्न प्रकार से आक्रमक नीति अवलंबन करिले। यहाकू दृष्टि रखी यहाकू भय करी इंग्लैंड कौन गला, इंग्लैंड मध्य बाध्य होई शेषरे कौन गला 1902 मसीह जापान सहित गुड़ी चुक्ति कला। तापर 1904 मसीह फ्रांस सहित एवं 1907 मसीह रूसिया सहित गोटे चुक्ति स्वाक्षर कला। यहीपरि भाव में यूरोप देश मैंने निज निज विरुद्ध चुक्ति स्वाक्षर कले एवं राजनैतिक जो परिस्थिति था ताहाकू आउरी जटिल करदेले। जानिबा कथा पिलाने देखंतु, तो जर्मनी सम्राट को कौन कह जाए काइजर कह जाए, रूसिया सम्राट को एवं बुल्गारिया सम्राट को जो राजा थे तांकू जार बोली कह जाए एवं तुर्की शासक को सुल्तान बोली कह जाउतला। तो आमे देखिबा त्रिशक्ति मेंट एवं त्रिमित्र पक्ष दुईटी एमती गोष्ठी से माने उत्थान होगा तांकर। तो त्रिशक्ति मेंट रे थिले किए जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटाली थिले और त्रिमित्र पक्ष रे थिले किए इंग्लैंड, रूसिया एवं फ्रांस थिले। तो ये बोली भाबरे दुई गोष्ठी होले से माने। तापरे आमे जानिबा उग्र जातीयतावाद। उग्र जातीयतावाद मध्य आ गुटे मुख्य कारण थिला हमरो प्रथम विश्वयुद्ध पई। जातीयतावाद माने कोन? जातीयतावाद माने हला निज देश को भल पाइबा, निज देश पई त्याग, निष्ठा, सहयोग एमिति जो भावना थाए ताहाको आमे जातीयतावाद कहिबा। किंतु जेते बेले यहा अधिक होई जिवो ताहाको आमे कहिबा उग्र जातीयतावाद। अधिक केमिति हेबो जे भूल है कि ठीक हो मो देश होची महान। जातीयतावादी जो देश गुड़िक थिले निज देश को से भल पाइले, अन्य देशर से कौन प्रकार असुविधा सुविधा सहयोग ये सब से चिंता न करी केमिति निज देशर स्वार्थ हासिल हो से विषय से चिंता कले एवं पड़ोसी देशर जो नागरिक गुड़ाक थिले तांको प्रति ईर्षा, विद्वेष और प्रतिद्वंदिता मनोभाव तांको भितरे जागी उठिला। तो यही परिस्थिति जर्मनी रे यही उग्र जातीयतावाद एते परिमाण वृद्धि पाई जाइतिला जे जर्मनी लोक माने एवं जर्मनी सरकार निजको पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ देश बोली से माने गणुथिले, जहा द्वारा जर्मनी तथा इंग्लैंड, फ्रांस ये सब मानक जो संपर्क थिला ताहा आहुरी तिक्त हेबाकू लागिला। तापरे सामरिक प्रतियोगिता। तो प्रत्येक देश कौन कले, प्रत्येक देश निजको शक्तिशाली करने से माने चेष्टा कले। पदातिक बाहिनी, नौ बाहिनी जहा गुड़ाई थिला सबको से माने तार संख्या बढ़ाइले, से माने केमिति ताको स्ट्रांग करिवे माने शक्तिशाली करिवे से विषय वर्णना को से माने चेष्टा कले। प्रत्येक देशर निजर गोटे गुप्तचर संस्था जोटी अछि, गुप्तचर संस्था। गुप्तचर संस्था माने कोन? जो भारत रे कोन अछि, भारत रे अछि हमरो र अछि, अमेरिका रे अछि CIA अछि, जदि आमे इजराइल को जिबा ताले सेठारे मोसाद बोली अछि मोसाद, आउ इंग्लैंड को जदि जिबा ताले सेठी MI6 अछि, एकथा टाइगर, ताबरे जेम्स बॉन्ड ए सब मूवी गुरा को जदि तुमे देखुछो ताले जानि परथुबो जे सेमाने केमिति काम करंती। ताले आमे एई संस्था द्वारा सेमाने कोन करथिले, एई संस्था द्वारा सेमाने अन्य देश उपरे नजर रखुथिले, केमिति कोन करूछथि सब ए सब सेमाने नजर रखिकि निजरो मध्य सेमाने केमिति तांको विरुद्ध रे प्रस्तुत हेबे से सेमाने चिंता करथिले। तर अनेक नूतन युद्धास्त्र वैज्ञानिक उद्भावन जो घटिथिबार कोन हला यूरोपीय देशर बहु परिवार विनाशकारी अस्त्र शस्त्र गुड़ाक निर्माण हला। और यही परिप्रेक्षी कोन हला 1890 मसीह जर्मनी कोन गला निजर नौ शक्ति इंग्लैंड अपेक्षा अधिक अछि बोली से माने घोषणा करदिले। याहाकू इंग्लैंड गुटे भय रूप भय सृष्टि है इंग्लैंड मन रे और जेमिति निज सुरक्षा प्रति विपद न हेबो ताबरे से निज हिसाब से काम करबाकू लागिला। तो यह मध्य थिला सामरिक प्रतियोगिता जो धीरे धीरे देश मानक मध्यरे विवाद सृष्टि कला, कलह सृष्टि कला, यह मध्य गोटे कारण थिला। ताबरे साम्राज्यवादी नीति। तो आमे जानिचु जे शिल्प विप्लव केउठारे आरंभ होइतिला, प्रथमे आरंभ होइतिला इंग्लैंड रे आरंभ होइतिला, तापर धीरे धीरे सबु यूरोप रे ताहा प्रसार हेइतिला। जेते बेले विभिन्न प्रकार कल कारखाना मेसिन जंत्रपाति माने प्रतिष्ठा हला उद्भावित हेइ करी तो उत्पादन रे मध्य वृद्धि हला। जेते चाहिदा देशरो सेते तो सेमाने रखिले
तापर पर से कौन कले जेते माने अधिका उत्पादित द्रव्य को अन्य देश बिक्री करने से चेष्टा कले एवं तांको यहाँ कौन गोटे नुआ नुआ बजार आवश्यकता पड़ा आउ कौन कारण थिला वृद्धि पाउथबा जो जनसंख्या थिला बसती स्थापन से नुआ नुआ अंचल खोजिले तेणुक से कौन गले यूरोपीय माने एशिया एवं आफ्रिका महादेश को आसिक जो अनुन्नत अंचल गुड़ाक थिला से प्रथम वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य आसिले एवं धीरे धीरे निजर साम्राज्य से विस्तार करने को आरंभ कले भारत को इंग्रेज मैंने सेमती आसिले प्रथम वाणिज्य कले विभिन्न जिनिस पत्र बिक्री कले देखिले जे आम एठारे राजा मान राजनीतिक माने से शक्तिशाली नहंती से तेणुक से सब नीति गुड़ाक अवलंबन कर साम्राज्यवादी नीति से आपणे विभिन्न देश को शासन करने को आरंभ कले तापरे बिस्मार्क जो थिले औपनिवेशिक वा साम्राज्यवादी नीति सपक्ष से नथिले किंतु काइजर विलियम द्वितीय जी थिले से कोन कहथिले से सबु बेले जर्मनी रो प्रसारण विषय चाहूले से जर्मनी को गोटे विश्व शक्ति उपरे माने विश्व शक्ति भाव से परिणत करने चेष्टा करते तेणुक कौन है से माने दूर प्राच्य है आमर जो एशिया आफ्रिका अच्छी सब अंचल को आसवाई चेष्टा करते एशिया आफ्रिकार विभिन्न अंचल तो फ्रांस और इंग्लैंड से शासन करते आमको भी शासन करते इंग्लैंड वाले तो से देखिले जे जर्मनी वाले जे प्राय अंचल से कौन कर इंग्लैंड एवं फ्रांस से शासन कर पकाउछन तेणु से कौन कले जर्मनी तथा इटाली नुआ नुआ अंचल गुड़ाक से अनुसंधान कले काइजर विलियम को नीति देखी फ्रांस एवं इंग्लैंड सहित संपर्क खराब है एवं साम्राज्यवादी नीति प्रथम विश्वयुद्ध गोटे मुख्य कारण हिसाब से आसीला तो 1878 मसीह कौन होता आम पढ़ा देखो जर्मनी प्राच्य नीति तो 1878 मसीह कौन होता तो 1878 मसीह बर्लिन महासभा पर तुर्की आभ्यंतरीण व्यापार में इंग्लैंड प्रबल उदासीनता थिला एवं वितृषण सुजोग नहीं काइजर कौन कले जर्मान जे काइजर थिले से तुर्की गोटे उत्तम बंधु बोली कहले एवं तुर्की सहित मित्रता स्थापन पर से चेष्टा कले एवं तुर्की को कहले जे कौन जे जर्मनी होची तुर्की सबुठारु उत्तम बंधु जर्मनी कहीं तुर्की सहित मित्रता स्थापन पर चाहूला ता पछरे गोटे स्वार्थ अच्छी जर्मनी कि स्वार्थ से जे जर्मनी निजर वाणिज्य व्यवसाय करने से कौन चाहूला निजर वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि करने बर्लिन ठारू बागदाद पर्यंत गोटे रेलपथ प्रकल्प से प्रतिष्ठा करने से चाहूला तैयारी करने से चाहूला और कौन दरकार पड़ूला यह तुर्की जमीती अनुमति देदेव जर्मनी को से विषय से चाहूला जदि अनुमति न देव प्रकल्प हेब ना जदि अनुमति देव ताहले प्रकल्प हेब तेणु से तुर्की सहित उत्तम बंधुत्व स्थापन पर से चेष्टा करथिला एही जिनिस को क्यों माने विरोध कले इंग्लैंड एवं फ्रांस लोक माने बा फ्रांस सरकार विरोध कले काहे इंग्लैंड एवं फ्रांस काहे विरोध कले कारण जदि एही रेल पथ प्रकल्प होइबो ताहले जो ब्रिटिश साम्राज्य अछि एशिया आफ्रिका एवं जो भारत रे मध्य थिला ता प्रति विपद सृष्टि करथिला एवं जर्मनी रो एही प्रकल्प सर्बिया रे जो फ्रांस रो आधिपत्य थिला ताहाकु मध्य यहा विपद सृष्टि करुला तेणु माने कौन कले यही देश इंग्लैंड एवं फ्रांस जो अच्छा से विरोध कले तो इंग्लैंड एवं फ्रांस विरोध कर फ्रांस और इंग्लैंड गोटे घनिष्ठ बंधु हिसाब से कौन है रूसिया नीति को विरोध कला तो यही परिप्रेक्षी में जर्मनी प्राच्य नीति थिला आम पढ़ा षष्ठ कारण मोरक्को संकट मान चित्र तुम देखिपार तो यही अंचल है मोरक्को आफ्रिकार उत्तर पश्चिम अंचल अवस्थित मोरक्को जो देश अच्छी तो 1904 मसीह इंग्लैंड एवं फ्रांस मध्य गोटे बुझामणा होता से बुझामण कौन होता बुझामण माने फ्रांस मोरक्को को जाकि आधिपत्य विस्तार करने इंग्लैंड राजी होता तेणुक मोरक्को आधिपत्य विस्तार करने उद्देश्य से हाँ फ्रांस आधिपत्य विस्तार करने लक्ष्य मोरक्को को से नजर पकेला तापरे मोरक्को उपरे अधिकार करने केवल फ्रांस नुह यूरोप आउ भी विभिन्न देश थिले जेमिति कि स्पेन हला जर्मनी हला इटाली हला
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ରହିଥିଲା କାହିଁକି ସେମାନେ ମୋରୋକୋକୁ କାହିଁକି ଅଧିକାର କରିବା ଚାହୁଁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମୋରୋକୋରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୌହ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଣ ଅଛି କୋଇଲା ପଥର ମିଳୁଛି କୋଇଲା ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମତେ କହିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଭିତରୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଛିବି କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ପଥର ଅଛି ତେଣୁକରି ମୋରୋକୋ ମଧ୍ୟ ଲୌହ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ସୁହାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ତ ଫ୍ରାନ୍ସ କଣ କଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ହଠାତ୍ କଣ କଲା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମୋରୋକୋରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜର୍ମାନୀର ଯେ କାଇଜର ଥିଲେ ଏହାକୁ ପୁରା ଦୃଢ ବିରୋଧ କଲେ ତେଣୁ କଣ କଲେ 1905 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋରୋକୋର ଯୋଉ ଟାଞ୍ଜିୟର ସହରକୁ ଯାଇକି କାଇଜର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କଣ ସେ ମୋରୋକୋ ସୁଲତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ମୋରୋକୋର ସାର୍ବଭୌମ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ମୋରୋକୋରେ କଣ ହବ ସେଠାକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ଦେଶକୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ କାଇଜରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ଫରାସୀ ମାନେ ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରାଯିବ ଯୋଉ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମୋରୋକୋର ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ 1906 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆଲଜେସିରାସ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଣ କରିବ ମୋରୋକୋରେ କେତେକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବ ବୋଲି ମାନେ ସେଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏହି ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିସ୍ତାରଣ ନୀତି ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କାଇଜର ୱିଲିୟମଙ୍କ ମାନେ ବିଜୟ ବୋଲି ଧରି ନିଆଗଲା ତ ଏହିପରି ଭାବେ ମୋରୋକୋ ସଂକଟ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କଲା ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ସମସ୍ୟା ଏହା କିପରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ତୁର୍କୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ହେଲା ତ 1877 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1878 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ ରାଜିନାମା ବଳରେ କଣ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ କଣ କରିପାରିବ ଦଖଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ଶାସନ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା କାହାର ରହିବ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ତୁର୍କୀର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା 1908 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ସେ କଣ କଲେ ସେହି ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଏହା ସିଧାସଳଖ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତ ଏହାକୁ ସେମାନେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ସର୍ବିଆ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ବିଆ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା ବୁଝିଗଲା ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାଟି କଣ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ହେଇଥିଲା ଓ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବା ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କଣ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଦାବିକୁ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଗାଦିର ସଂକଟ କଣ ଥିଲା ଆଲଜେସିରା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର କଣ କଲେ ମୋରୋକୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ବାହାନାରେ ସେ କଣ କଲେ ସେଟାକୁ ସେ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇଦେଲେ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ତ ଆଲଜେସିରା ସମ୍ମିଳନୀ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇଦେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଧମକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କଲେ ଜର୍ମାନର କାଇଜର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମୋରୋକୋର ଆଗାଦିର କୁ କଣ କଲେ ପାନ୍ଥର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠେଇଦେଲେ ପାନ୍ଥର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସେ ପଠେଇଦେଲେ
तो यहाकू देखि युद्धर आशंका उपलब्धि कले कोन कले इंग्लैंड फ्रांस को समर्थन जनाइला किंतु काइजर कोन होला सेही समय जे शांतिपूर्ण भाव से राजी हो गले एही विवादर समाधान पाई। तो ये आगादीर संकट रु जना पड़ला जे कोन जे इंग्लैंड एवं फ्रांस युद्ध करिवा पई प्रस्तुत थिले कहा विरोध रे जर्मनी विरोध रे एवं जर्मनी मध्य यहाकू देखि से मध्य युद्ध पई प्रस्तुत हेगला एही बोली आगादीर संकट प्रथम विश्व युद्धर कारण रूपे आगु आसिला। तापरे नवम कारण विषय में पढ़ा बल्कान युद्ध विषय। तो बल्कान अंचल आम देखी तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया मध्य कौन होता एवं ऑस्ट्रिया और रूसिया मध्य आंचलिक कलह था से माने बल्कान अंचल को प्रवेश कर कौन चाहते निजर आधिपत्य विस्तार करने चाहते परस्पर से कलह लिप्त हेले यही भाव में कौन है 1912 मसीह सेठारे युद्ध लगिगला एवं आंचलिक युद्ध प्रथम विश्वयुद्ध स्फुलिंग उत्पन्न होगला। तो बल्कान अंचल रे जो अशांति लगिगला युद्ध लगिगला परस्पर से शत्रु होगी युद्ध लगी पड़े एवं बल्कान युद्ध मध्य कौन है प्रथम विश्व युद्धर गोटे कारण हिसाब से आगे आसला। तापर आम जाना काइजर द्वितीय विलियम को नीति केमिति प्रथम विश्व युद्धर कारण होता। तो बिस्मार्क जेमिति केवल जर्मनी एकत्रीकरण करी से साम्राज्यवादी नीति को चाहूनुथिले तांकर सही मध्यम पंथा को प्रत्याख्यान करी कोन करथिले काइजर विलियम द्वितीय जे थिले तांकर एक अस्थिर एवं अपरिणामदर्शी नीति अवलंबन कले जहा द्वारा से पृथ्वी रे प्रभुत्व विस्तार करबा पई से चेष्टा कले। तापर जर्मनी को गोटे विश्व शांति करबा पई विभिन्न भाषण रे से कहिले जर्मनी होची महान आमे पृथ्वी को शासन करबा एही बोली से घोषणा कले। जर्मनी रो प्रसारण समर सज्जा देखि तांकर विदेशी नीति जो थिला तार देखि अन्य देश माने भय कले एवं सेमाने मध्य निजर शक्ति बढ़ाइले एवं युद्ध पे प्रस्तुत होइकी रहिले। तापर आमे जानिबा अंतर्जातिक संगठन रो अभाव जेमिति पिला माने तमरो स्कूल रे तम मध्य झगड़ा ले तुमे कहा पाखु जीवो कोनोसी शिक्षक शिक्षयित्री किबा हेडसार को पाखु जीवो जदि हेडसार नहंती शिक्षक शिक्षयित्री नहंती ताहले तमरो कलहर समाधान हेबो कि हेबो नै। तो ठीक सेमिति कोन पृथ्वी रे मध्य से समय कोनोसी अंतर्जातिक संगठन नथिला जे कि युद्धर संभावना को एड़ेबा पई उद्यम करिवे एवं कोनोसी जदि वाद विवाद देश देश मध्य तांकु शांतिपूर्ण उपाय रे से माने आसिकी समाधान करिवे बोली हला। समस्त राष्ट्र सेमानक स्वार्थ केंद्रिक उद्देश्य साधन पई स्वाधीन भाव में कार्य करथिले जे जहा कला माने कही माने कहु नथिले माने लगाम नथिला तांको ऊपरे। तो आगु गोटे सम्मिलनी होता हेक सम्मिलनी बोली कहवा तो नेदरलैंड रे अछि हेक सहर एटा देखि पारतु मानचित्र रे 1899 एवं 1907 मसीह हेक ठारे गोटे सम्मिलनी होता। तो सेठारे युद्ध निवारण पई केते गुडे नीति नियम प्रचलन करा जायतिला किंतु से नियम गुड़िक कौन थिला एई आईन गुड़िक पालन करबा को बाध्य नथिला माने बाध्यतामूलक नथिला जे जदि आईन रो उल्लंघन करिवो ताहे कोनोसी प्रकार तांको ता उपरे एक्शन निया जीव नाही ता कोनोसी प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीव नाही बोली से माने बाध्यतामूलक नथिला। तेनु से माने कोन चाहथिले से माने कोनोसी प्रकार रे काहे को खातिर न करी निज निजर कार्य समय तुले दिले जेमिति पाठ पढ़ी सारा पर सार माने माने तुमको होमवर्क दियंती जदि होमवर्क कंपलसरी न करागला कले चलिबो न कले भी चलिबो ताहले पिला माने होमवर्क करिवे कि करिवे नाही। ठीक सेमिति ए नीति गुरिक मध्य बाध्यतामूलक नथिला। तेनु करी कोन हला अंतर्जातिक संगठन रो अभाव हेतु एही पृथ्वी रे अशांति सृष्टि हिला एवं विभिन्न देश मध्य शत्रुता लगी रहिला। तापरे आसन्न कारण बा जेउ कारण हठात हेगला से कारणटा कोन माने विभिन्न युद्ध पई तो प्रथम विश्व युद्ध पई तो विभिन्न कारण होइतिला आमे पढिला आगादीर संकट साम्राज्यवादी नीति उग्र जातीयता एसिला। तापरे युद्ध हेबा पई पांच गोटिए घटना दरकार थिला जेमिति माने गोटे घरे काठ अछि पेट्रोल सेठी पडिछि आउ जदि पेट्रोल तो आमे जानिछु जे बहुत जल्दी निया लागि जाय सेथिरे जदि निया देले ताले ब्लास्टिंग हो सेटा। तो जदि आमे गोटे माचिस ताहरे लगे देबा ताले कोन हो दियासली गोटे जदि लगे देबा सेटा सडन जली जीवो निया लागि जीवो ब्लास्टिंग हो जीवो। ठीक सेमिति कोन
कारण पूरा प्रस्तुत थिला भित्तिभूमि प्रस्तुत थिला केवल गोटे घटना गोटे मुख्य जिनिस हबार बाकी थिला और सेटा थिला कोन फ्रांसिस फर्डिनांड को हत्या। तो फ्रांसिस फर्डिनांड के थिले देखो एई थिले तांकर फोटो हम देखि पारुछे एठी। तो 1914 मसीह कौन है जून मास 28 तारिख रे से थिले ऑस्ट्रिया सम्राट कर पुत्रा थिले फ्रांसिस फर्डिनांड हला और ऑस्ट्रिया राजगादी से उत्तराधिकारी थिले। तांको पूरा ना थिला आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड। तो से कौन कले 1914 मसीहा जून मास 28 तारिख रे से जाउथिले एवं बोस्निया जो राजधानी थिला ऑस्ट्रिया रो से राजधानी भीतर कौन है से बोस्निया थे तांको गुली करी माने बोस्निया राजधानी साराजेवो जो थिला जो सेठारे से गुली करी तांको हत्या करा गला। तो ये हत्याकांड पई सर्बिया देश को ऑस्ट्रिया दायी कला एवं ए फोटो देखो एटा थिला साराजेवो हत्याकांड जो हत्याकारी गुली करूची एमन को हला। तो फ्रांसिस फर्डिनांड को हत्या घटना ऑस्ट्रिया सर्बिया देश को दायी कला एवं हत्याकारी संगठन जो थिला ब्लैक हैंड जो थिला हत्याकारी संगठन तो कहि परिबा नै सर्बिया रो गुटे गुप्त संगठन थिला एवं से गुप्त संगठन ब्लैक हैंड जो थिला सर्बिया जाति रो थिला तेनो करी से हत्याकारी को सर्बिया को माने दोष दिया गला एवं कोन हला आगरु जो विभिन्न प्रकार शत्रुता थिला ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया भितरे ता भी मुख्य टन थिला एवं घुसुरी राजनीति का कहबा विदेश को घुसुरी रप्तानी करिबार माने सर्बिया थिला गुटे मुख्य व्यवसाय एही माने एड्रियाटिक सागर को प्रवेश बंद करबा द्वारा कोन हला जे सर्बिया रो बहुत सारा क्षति हला। या को सर्बिया कोन कला जे ऑस्ट्रिया रो घुसुरी राजनीति बोली अभिहित करतिला एवं ब्लैक हैंड संगठन आमे देखि परिबा ब्लैक हैंड संगठन जो अछि सर्बिया रो ब्लैक हैंड गुप्त संस्था ऑस्ट्रिया को आतंकित करबा पई से गठन करतिला और जे से राजकुमार को हत्या करदिले तांको ना थिला गाब्रिएलो प्रिंसेप थिला और से माने ए ब्लैक हैंड संगठन रो से सभ्य थिला तेने करी तांको दायी करा गला एवं एही हत्याकांड पुरे सर्बिया निकट को ऑस्ट्रिया कोन कला गोटे चरम पत्र प्रेरण कला 1914 मसीहा जुलाई मास 23 तारिख रे ऑस्ट्रिया 10टी शर्त संबलित गोटे चरम पत्र से प्रेरण कला एवं जदि से ग्रहण न करिवो ताहले ता विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जे बोली से कहिला। जदियो केतेक माने मुख्य शक्ति जो थिले पृथ्वी रे तांको सहायता रे सर्बिया केते गुडे शर्त से पूर्ण करिदेला केते गुडे पूर्ण से करि पारेला नाही एहा को ऑस्ट्रिया मानिला नाही एवं संतुष्ट हैला नाही एवं से कोन कला युद्ध पई से प्रस्तुत हेकी रहिला। तो एही परि भाबरे कोन हैला ए जो विभिन्न कारण थिला सुदूर कारण 11टी गुटी थिला और आसन्न कारण जो माने चरम पत्र जो 10टी शर्त संबलित थिला ताहाको सर्बिया पूर्ण करि पारिला नाही। आगरो जो माने शत्रुता थिला सेही शत्रुतार प्रतिशोध नेबा पई ऑस्ट्रिया को मध्य गोटे सुयोग मिली गला एवं 1914 मसीहा जुलाई 28 तारिख रे आनुष्ठानिक भाबे कोन हला ऑस्ट्रिया सर्बिया उपरे युद्ध घोषणा करिला एवं एही परि भाबरे धीरे धीरे विभिन्न देश ऑस्ट्रिया सपक्ष रे सर्बिया सपक्ष रे आसिकी मिसिकी कोन हे करले से माने प्रथम विश्व युद्ध आरंभ करिले। तो एही सब थिला हमर प्रथम विश्व युद्धर कारण विषय रे। तो आमे केते गुडे प्रश्न आलोचना करिबा। तो प्रथम विश्व युद्ध केबे हितिला केउ मसिया हितिला? वेरी गुड बहुत सुंदर 1914 जुलाई 28 तारिख। तबरे फ्रैंकफर्ट संधि केबे स्वाक्षरित हितिला? जराम स्कूल फ्रैंकफर्ट संधि केबे स्वाक्षरित हितिला? 1870। भूल उत्तर 1870 नुह सेटा भूल उत्तर के कहिबो जी जानिचो कुह बीएमए गर्ल स्कूल। तो 1871 मसीह हितिला जर्मनी एवं फ्रांस मध्य फ्रैंकफर्ट संधि। तापर देखो प्रथम विश्व युद्धर प्रभाव केउ महादेश रे विशेष भाव में अनुभूत होइतिला? एशिया आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप केउ महादेश हितिला? तो सठिक उत्तर होउची यूरोप। यूरोप महादेश रे यार प्रभाव बेसी देखिबा को मिलितिला।
तापरे 1890 मसीहा परे केउ देश नौशक्ति रे इंग्लैंड अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बा अधिक वृद्धि घटाई बोली घोषणा कला केउ देश घोषणा करथिला जर्मनी वेरी गुड बहुत बढ़िया जर्मनी होची सठिक उत्तर तापरे देखो ब्लैकमैन गुप्तचर संस्था केउ देश गठन करथिला सर्बिया वेरी गुड सर्बिया ऑस्ट्रिया को भयभीत करबा पई तापरे कूटनैतिक चुक्ति व्यवस्था प्रथमे किया आरंभ करथिले विलियम जेम्स कार्ल मार्क्स हिटलर बिस्मार्क किया आरंभ करथिले कूटनैतिक चुक्ति व्यवस्था बिस्मार्क शाबाश बहुत बढ़िया तो कौन कहा जाउतला राजा सुल्तान जार काइजर कौन बोली कहा जाउतला जर्मनी रो सुल्तान को जार ना जार नो भूल उत्तर जार काइजर वेरी गुड काइजर बोली कहा जाउतला बहुत सुंदर सिद्धांत युद्ध क्यों मसीहा रे हितला देखो ऑप्शन गुड़ा को देखो 1860 1875 1870 1879 1870 रे हितला तापरे जर्मनी रो काइजर द्वितीय विलियम मोरक्को रो आगादी बंदर को डैश नामक युद्ध जहाज पठेइतिले को उत्तर को सठिक उत्तर क्यों जहाज नाम कह युद्ध जहाज पांथर वेरी गुड पांथर नामक युद्ध जहाज पठेइतिले एवं बहुत बढ़िया जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटाली को नहीं क्यों मंच गठित करथिला जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं इटाली ए तीन देश जो गठन करथिले सेही मेंटर नाम कोन त्रिशक्ति मेंट वेरी गुड त्रिशक्ति मेंट बहुत बढ़िया त्रिशक्ति मेंट तो गृह कार्य नोट कर दियो और आशा करूची पिला माने तुमे विषय की बुझी पारिथिबो जदि किछि संदेह हुए ताले तुमे निजरो विषय शिक्षकक सहित परामर्श नेबो तांकु पचारिबो एवं एही गृह कार्य करिकी तांकु देखेइबो एवं निजे भी टिके पाठ पढिबो धन्यवाद।